everything we have discussed. This call is now being recorded. Unit 12 we have discussed precipitation reactions. So Sir. okay, we'll discuss this one, precipitation titration. You see here one reaction, AgNO3 plus Ki. It is called precipitation titrations. Means there will be a precipitate. You see here AgNO3 plus Ki. Sir, oh, screen share नहीं किया. You can able to see or not? You cannot see. I'm not able to see. Yes, wait. Okay. Now you can see. Yes, sir. Yes, this is topic is precipitation titration. So you can see here any reaction where you can see that AgNO3 plus Ki gives rise to AgI plus KNO3. AgI is the precipitate, it is solid. Then as you know, the precipitation reactions in this case is of sparingly soluble salt. So you can get KSP. KSP equal to Ag plus into I minus. And values are there. So you can concentration of Ag plus and I minus given. And you can calculate KSP. Major regions of a precipitation titration is this one. Not so much required. It is simply, you can formula is there to calculate it. Not. This is the precipitation graph. You can see the end point, how it is coming. Titration call for the titration, the end points are coming. Titration of Br minus with Ag plus. You can see this one, Br minus and Ag plus. First one is Ag plus and I minus. This is Br minus and Ag plus. The curve you can see. This is also Ag plus and Cl minus type of graph, this one. Then Ag plus and I minus mixture with silver ion, that iodine chlorine mixture. So you have iodine also and chlorine also. So solubility product will change because AgI solubility is different. Product 1 point you can do minus 16, and AgCl, KAgCl is 1.8 to the minus 10 higher. KAgCl is higher than KAgI. So when these two are mixed together with definite concentration, you can see here the concentration given that 0.01 m is for I minus and Cl minus, and Ag plus is 0.1 m. Then you can get two types of break points. Here is a break point and here is a break point. Two break points, you can see it. This is when two different anions are participating in titration reactions. Two different ions and same cation, Ag plus. Same cation but two different anions. Then sharpness of the end point depends on many factors. You can see here that it depends on the properties of the indicators. The sharp points depends on this. completion reactions कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसके ऊपर शार्पनेस आएगा. इसके बाद indicators for precipitation titration. Okay, the different indicators are there. Okay, if different indicators are used, then they are also of different types. Okay, right? Volhar method. Volhar method, it is for chlorides. Chlorides are fast precipitated with excess of silver nitrate. Then excess silver is titrated with potassium thiocyanate. Okay. Potassium thiocyanate is used here. And it forms a red complex, FeSCN2+. The end point is intense color of FeSCN2+. So, and to get the end point, and it should be a color because you can identify that end point is reached. Volhar method is one of them, and here you are using thiocyanate ion, potassium thiocyanate or sodium thiocyanate. You are using it to have a color. When this is used, then you get the red color, or red complex is formed.
Then Volhard titration equilibrium. You can see this one. Main is the SCN minus ion. This is forming the complex with iron, and FeSCN2 plus is the color producing complex, and this is the reason why the equilibrium shifted in the forward direction. You can see the equilibrium values are there and concentration are there. Next one is Fajans method. Fajans method is titration of chloride with silver ion using dichlorofluorocene. But remember that I'm discussing about, Jitendra, I'm discussing about the indicator. Fajans method requires indicator dichlorofluorocene. These things you remember. Which indicators is used? And you can see the structure of dichlorofluorocene. This is the things. Dichlorofluorocene, fluorocinate and ion is there. Fluorocene is given here. You have one is OH and the second one, two phenolic groups are there. And one is the ethyl group and one is ketone group. And this one, when ionized, it gives you a resonance stabilized compound. You can see this one. And this one is forming pink color. Okay, Jitendra? Yes, sir. Greenish one becomes, these things you remember only. that कि Fajans मेथड में क्या होता है कि सर ये क्लोराइड के लिए टेस्टिंग होता है सिल्वर क्लोराइड का, लेकिन इसके लिए जो आर होता है ना, वो आर होता है इंडिकेटर डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। और डाइक्लोरोफ्लोरोसिन कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है ना, सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स जो होता है इसका कलर होता है पिंक कलर। ओके सर, बस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। देन नेक्स्ट यू कैन सी functioning of adsorption indicators. Okay, ये एक अलग चीज है। For example, you are doing an adsorption mechanism. Adsorption means there will be an adsorbent and adsorbate. As you know, coal is actually used as an adsorbent. So here it is written that the titration used for this is Morse titration. So in Morse titration, you are using silver chromate, Ag2CrO4. Silver chromate you can use, and you get black, red, silver chromate. So main here chromate ion is the main thing. Ag2CrO4 is used, and the solution is black, red, silver chromate is the silver chromate color, but the precipitate here comes out is the brick red. The appearance of brick red on the background of white AgCl donates that endpoint comes. Okay, Jitendra, these things you remember. Brick red color. This brick red color formation on the white surface precipitate of AgCl will confirm that it is the Morse titration and endpoint is achieved. okay sir. Next indicator is indicator blank in the Morse chloride titration. Indicator blank. Then applications is this type of precipitation titrations are mainly used with silver nitrate solution mainly, and hence it is called as argentometry, because silver nitrate is the main solution here. Along with this you are preparing, so it is called argentometry. You can see here सब्सटेंस डिटरमाइंड, कौन कौन सब्सटेंस को लिए एंडपॉइंट क्या होता है। वोलार में कौन कौन सा सब्सटेंसेस डिटरमाइन करते हैं, मॉडिफाइड वोलार में क्या करते हैं, मोड्स में क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर में क्या करते हैं, कौन कौन सा रेडिकल और आयंस को हम जान सकते हैं कि ये है कि सब्सटेंस में है कि नहीं। इट्स प्रेजेंस कैन बी नोन फ्रॉम दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, एंड द कलर actually
the end point actually obtained and the color I have explained you. This is the main thing here. Then next is some questions you can see. फैक्ट का मारो मैं Question विवास वेसल में application of precipitation titrations. It is given here. To improve the rate of precipitation, it is sometimes beneficial to change solvents by adding alcohol or to raise the temperature. By adding excess reagent, then you can the reverse action occurs. Okay, precipitation proceeds slowly और ये लिखा हुआ है सब क्वेश्चन है कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस और कुछ है ये ओनली रूल्स आएगा मतलब कौन सा कलर चेंज होगा कौन टाइट्रेशन कौन सा होगा आएगा तो वो टेबल आएगा इसमें जैसे कि जिंक 2+ मॉडिफाइड भोलार में कर सकते हो क्योंकि वो जो प्रेसिपिटेट होगा ना वो जिंक मर्क्यूरिक थायोसाइनाइड आयन होगा ये कॉम्प्लेक्स इसका ब्लैक कलर होगा ब्लैक टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस पहले ब्लैक होगा ये प्रेसिपिटेट ये ब्लैक कलर होगा क्लोरीन के लिए होगा लेड क्लोरीन क्लोरोफ्लोराइड PbCl8 होगा इसका भी लिखा हुआ है कौन सा प्रेसिपिटेशन बिकॉज एच यू नो प्रेसिपिटेट जो होगा इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कौन सा आयन्स प्रेजेंट है इन द कंपाउंड तो इसलिए इस चीज को प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस ओके सर आई थिंक यूनिट 11 डिस्कस किया था कि नहीं कॉम्प्लेक्स में ट्रीट किया था ना हाँ किया था सर वो यूनिट 13 देखते हैं और ये ग्राविमेट्रिक एनालिसिस है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस इसका मेन वर्क इज यस ये यहाँ पर क्या होता है कि अच्छा ये लिखा हुआ है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्वांटिफिकेशन के लिए यूज होता है मतलब अब जो प्रेसिपिटेट होगा ना इसको वेट किया जाएगा सो वेट से पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है और वेट के बाद हमको फिर टेस्ट करना पड़ेगा लेकिन इसका मेन काम है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है बाय वेट अच्छा तो इससे पहले से पढ़ाई थी उसमें वो थी ना कलर से कर रहे थे पीछे प्रीवियस यूनिट में हम कलर देख रहे थे नहीं ग्राविमेट्रिक में मेन चीज ये होता है कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा इसको वेट किया जाएगा ठीक है अच्छा बाय वेट क्वांटिटी हाँ इसके बाद ही वेट से हमको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ये था ये वाइडली यूज्ड मेथड है लेकिन इसमें भी कुछ मतलब डिमेरिट्स इसमें है और इसमें एक और चीज है कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड होता है जैसे कि डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइन ये कॉम्प्लेक्स है मतलब ये लिगैंड है डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइन और निकेल 2+ के लिए कॉम्प्लेक्स करता है तो निकेल एस्टिमेशन में निकेल का प्रेजेंस जानने के लिए कितना अमाउंट जानने के लिए
निकल के साथ और डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम को ऐड होता है, इसके बाद ही इनका वेट होता है। वंस ये प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, इसका वेट निकालते हैं। यस, इसका वेट निकालते हैं। इसके बाद इसका कैलिब्रेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट एक होता है, इसमें कैलिब्रेशन होता है। इसके बाद इसका वेट निकालते हैं। इसके बाद इसका डिफरेंट स्पेक्ट्रल एनालिसिस होता है और इसके बाद वो कंपाउंड जान पाते हैं। जैसे कि एक ये है, एक स्टेप है न्यूक्लिएशन। यस, न्यूक्लिएशन मतलब प्रेसिपिटेशन के पहले when we are adding two compounds, then one compound it simply forms the crystal by forming complex or by forming a precipitate. So mainly remember that whenever you are doing an experiment, then first work is your nucleation. Nucleation means to make precipitate. This nucleation के लिए जो पार्टिकल साइज होता है ना, कौन सा मतलब ग्रेविमेट्रिक पार्टिकल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज पार्टिकल साइज होगा तो ये प्रेसिपिटेट ज़्यादा जल्दी करेगा। इफ इट इज लार्ज पार्टिकल साइज देन इट्स प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इमीडिएटली। वो लिखा हुआ है और ये साइज भी लिखा हुआ है 10⁻⁷ to 10⁻⁴ सेंटीमीटर, जो कि नेकेड आई में तो इनविजिबल है, लेकिन इफ यू सी थ्रू द पावरफुल माइक्रोस्कोप देन यू कैन able to know that it is a tiny particles, but its size is bigger because 10⁻⁷ to -4। वो क्या होगा, सेटल डाउन नहीं करेगा and cannot be easily filtered. At the other end, the particles with dimensions order 10th millimeter से कम होगा और ज़्यादा होगा, ये डिस्पर्सन करेगा, और इससे ज़्यादा होगा तो ये सस्पेंशन हो जाएगा। मतलब डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज, the particle may be dispersed, may not be simply miscible, or it may miscible completely. Then precipitate is hello. And precipitate formation के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि precipitate का solubility, then temperature, then reactant, then concentration। और सबसे वो प्रेसिपिटेट का रेट डिपेंड करता है, साइज। सुपर सैचुरेशन मीन्स एक बार प्रेसिपिटेट हो गया ना, इसके बाद और कुछ सॉल्वेंट ऐड होता है, सॉल्यूट ऐड होता है टू मेक इट इज सुपर सैचुरेटेड। सेकिंग करके व स्टीयरिंग करके हम इसको बना सकते हैं। देन इसके बाद इसका रेट निकालते हैं। टू कैलकुलेट द रेट यू कैन सी द मेथड is used in this case. Q is the concentration of a species, S is its equilibrium stability, so Q minus S by S value. S is when S can be increased by making use of the factors like pH, the use of complexing agent, वो सब अलग चीज है। देन को-प्रेसिपिटेशन, ये ओके, ये क्या है कि ये बोल रहा है कि प्रेसिपिटेट सेपरेटिंग फ्रॉम ए सोल्यूशन आर नॉट एज ए रूल प्योर। तो ये प्यूरिफाई करने के लिए होता है, बट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स आल्सो, लिक्विड्स आल्सो। सो इसको फिर प्योर करने के लिए, जो कंटामिनेट हुआ है प्रेसिपिटेट को, इसको प्योरिटी करने के लिए हमने को-प्रेसिपिटेशन मेथड यूज करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, बेरियम क्लोराइड ऐड होता है, एंड जो पोटेशियम सल्फेट ये भी ऐड होता है। तो बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन होता है, वो क्या करता है, वो ये इम्प्योरिटीज के साथ एक केमिकल बॉन्ड करता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्सिंग होता है। सो को-प्रेसिपिटेशन प्रोमिनेंटली टेक्स प्लेस बाय टू मैकेनिज्म, वन बाय एब्जॉर्प्शन और बाय ऑक्लूजन। एब्जॉर्प्शन मतलब द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स पे होता है, और ऑक्लूजन होता है वो सॉल्वेंट के ऊपर होता है। तो ये प्योरिटी, प्योर सैंपल नहीं मिला तो फिर ये करना पड़ेगा, लेकिन प्योर कैसे मिले,
तो if you are preparing a precipitate, it must be pure. To make it pure, then you need you to minimize, then you can minimize the co-precipitation method. So ये लिखा हुआ है कि कैसे minimize करें. वो लिख रहा है कि when you are mixing solutions, mix it slowly, stirring. This will prepare the precipitate or suspenser, whatever it may be. very अच्छा क्रिस्टल बनेगा. और जब प्रेसिपिटेशन करना है ना तो ये हॉट सोल्यूशन करना है, कोल्ड में नहीं, तो ज़्यादा प्रेसिपिटेट अच्छा बनेगा. तो इसके बाद जब रख देंगे तो फिर क्रिस्टल बन जाएगा. तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या तुम करोगे सो दैट तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा. सर इम्प्योरिटीज अगर ज्यादा रहेंगे फिर इसको कैसे साइड करेंगे? ये बोल रहे हैं इनपुट ज्यादा रहेंगे तो फिर को प्रेसिपिटेशन मेथड यूज करना पड़ेगा. इसमें बेरियम सल्फेट और जो लिखा हुआ है पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लिखा हुआ है. तो इसको सेव करेंगे आफ्टर एडिंग. यस. इसके बाद आपको फिल्टर करना है. तो ये दो प्रकार के काम करते हैं. मे भी एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो ऑक्लूजन होता है. तो दोनों की तरफ से वो प्योर हो जाएगा, कंटामिनेशन दूर हो जाएगा. ओके सर. वो लिखा हुआ है कि co-precipitation should be distinguished from contamination with the result of purely chemical precipitation. जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो इसके टाइम में आपको देखना है कि कंटामिनेशन हो रहा है कि नहीं. तो मतलब हर जगह पर तो कंटामिनेशन ही होता है. तो प्योरिटी के लिए हमको फिर कुछ मेथड्स यूज करें. यहाँ पर co-precipitation लिखा हुआ है, एक मेथड का नाम दिया है. ऐसे नहीं है कि हर कंपाउंड का होगा, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है. ठीक है. ओके सर. देखिए ये लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट के साथ पोटेशियम सल्फेट कंप्लीट रिएक्ट करता है. इसके बाद भी ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ना, बेरियम सल्फेट बनता है, वो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन नहीं होता. तो इसके लिए ही को-प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म यूज होता है. देखिए ये सब मेथड्स हैं. ये लिखा हुआ है बाय कैरिंग आउट सेकंड प्रेसिपिटेशन. फॉर एग्जाम्पल जो हो गया इसको फिर प्रेसिपिटेट कर सकते हो. तो इससे क्या होगा, फॉरेन सबसेट कम हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज कम होगा. इसके बाद रोल ऑफ प्रेसिपिटेशन और सेपरेशन ऑफ ट्रेस क्वांटिटीज. We can use this method in mineral extraction. हाँ. यस हो सकता है. जैसे कि अक्वार मिनरल एक्सट्रैक्शन के समय टाइम में भी if the minerals is available in the area of nuclear, जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर एलिमेंट्स होता है, यूरानियम थोरियम जिस यहाँ पर होते हैं ना सब कुछ, वो भी तो एक मेटलॉइड, मतलब ये तो भी एक और से मिलेगा ना. तो जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन का रेडियो आइसोटोप्स होता है ना, वो भी रह जाते हैं कंपाउंड के साथ. तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं फॉर्मिंग प्रेसिपिटेशन. देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड is a very useful scavenger, and in presence of excess of hydroxide ion it is negatively charged. The use of ferric hydroxide is a scavenger for separation of barium radioisotope from cesium टारगेट. समझ आ गया मेरे को. अब सीजियम का आप कोई तुम्हें एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, इसमें बेरियम आइसोटोप रह सकता है, क्योंकि बेरियम सीजियम यू मालूम है कि नहीं, वो एक ग्रुप में है ना, है कि नहीं. बेरियम और सीजियम सेम ग्रुप में है ना. यस सर. बेरियम का आइसोटोप भी सीजियम के साथ, तो बेरियम को रिमूव कर सकते हो तुम बाय यूजिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड. तो लिखा हुआ है द सेपरेशन ऑफ बेरियम फ्रॉम सीजियम इज मेड बाय को-प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम ऑन फेरिक हाइड्रोक्साइड. नाउ इट इज क्लियर. यस सर, क्लियर. the separation of barium ion from iron is made by. इसके बाद फिर
तुमको बेरियम सेपारेट करने के लिए जब मैंने बोला यू टू ऐड आयरन डिजॉल्विंग यू कैन गेट इट आउट, नो प्रॉब्लम, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड होकर निकल जाएगा। देन पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ओहो ये बोल रहा है कि पोस्ट प्रेसिपिटेशन, वो बोल रहा है कि को प्रेसिपिटेशन तो एक काम है जो कि कंटामिनेशन को दूर करने के लिए है, लेकिन ये बोल रहा है कि जब कंटामिनेशन ज़्यादा हो गया है ना तो इसको पहले पोस्ट प्रेसिपिटेशन करना पड़ेगा, इसके बाद तुम जो को प्रेसिपिटेशन कर सकते हो। तो you cannot do co-precipitate if the precipitate is much impure, तो मोर सुपर सैचुरेटेड होगा तो फिर इसको तुम्हें पहले इसको पोस्ट प्रेसिपिटेट करना है, इसके बाद जाना है कहाँ पर, वो प्रेसिपिटेट जाना है, वो लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सालेट और कैल्शियम ऑक्सालेट दोनों से जो प्रेसिपिटेट बनेगा ना, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम सेम ग्रुप में है ना, दोनों प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, तो इसको पहले पोस्ट प्रेसिपिटेट करके अलग करना है, इसके बाद ही को प्रेसिपिटेट करना है। इसके लिए देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पोस्ट प्रेसिपिटेट क्या करोगे, H2S गैस पास करना है इन एसिडिक सोल्यूशन, तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल एक कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कॉपर 2+ आयन है और कुछ जिंक 2+ आयन है, तो कॉपर सल्फाइड एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा विदाउट कैरिंग जिंक, ठीक है, समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ये कर दे पोस्ट प्रेसिपिटेशन, मतलब कॉपर और जिंक दोनों है, कॉपर बहुत है और जिंक बहुत कम है, ठीक है, तो H2S एसिडिफाइड H2S से पास करोगे ना तो कॉपर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जिंक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बहुत कम जिंक है तो फिर हमने जिंक को अलग कर लिया, तो यहाँ पर को प्रेसिपिटेशन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहिए तो काम तो हो गया। इफ इसके बाद भी कॉपर सल्फाइड में कुछ जिंक रह गया तो फिर क्या करोगे बोलो मुझे, तो फिर को प्रेसिपिटेशन। नाउ इट इज क्लियर, यस सर क्लियर। ये दिया फिर वो दो मेथड मैंने बोला, एक ओक्लूजन है और एक एब्जॉर्प्शन है, दो करना पड़ेगा। थोड़ा ब्रेक ले लें 1-2 मिनट। ओके सर।
Okay, start करें. Yes, sir. And then you see the difference in co-precipitation and post-precipitation. If the precipitate is left in connect with the mother liquid, the contamination increases. With time in post-precipitation, the contamination increases. The faster the solution is degraded by either the mechanical or thermal means, the reverse is generally. Yeah. The reverse is generally the case with the co-precipitation. In case of post-precipitation, the contamination increases. The faster the solution is agitated by either mechanical or thermal way. The reverse is generally the case with co-precipitation. अच्छा ये दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है ये देखो ये क्वेश्चन देखो था which cation is likely to co-precipitated by barium sulfate precipitate क्या होगा ये बोलिए कौन सा आयन करेगा copper 2+. Copper 2+. Yeah. Precipitation from homogeneous solutions. अच्छा. Okay. Generating the anions by hydrolysis, precipitation of phosphorus, precipitation of oxalates, precipitation of sulfates, anions by hydrolysis. ये सब देखो लिखा हुआ है क्या क्या तुम्हें ऐड करना है इसको रिमूव करने के लिए क्या क्या ऐड करोगे वो लिखा हुआ है Esters have been mostly used. Let us discuss some examples. Insoluble phosphates can be precipitated with phosphate generated from triethyl phosphate or metaphosphoric acid. Esters of oxalic acid serves as a source of oxalate ion as the equation below. ये सब लिखा हुआ है क्या क्या यूज करना है सल्फाइड्स को यूज करने के लिए क्या यूज करोगे ये सब है रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स एजेंट आर करके कैसे करोगे ये सब इसका एग्जांपल है ये लिखा कौन सा के लिए क्या क्या करोगे देखो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि most these precipitates are obtained by organic compounds are flocculent in nature in view of these precipitate obtained by organic compounds in view of the certain inherent advantage of organic reagents serious effects have been made to improve the nature of the precipitates and the best example in this case is this निकेल और निकेल के लिए डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन चाहिए ये डायरेक्ट पूछेगा निकेल के लिए ये चाहिए डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन और डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन कैसे बनाते हैं वो दिया हुआ है डाइकीटोन कॉपर के लिए चाहिए सैलिसिलाल्डिहाइड समझ आ रहा मैं क्या बोला जितेंद्र यस सर और निकेल के लिए क्या चाहिए वो चाहिए डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन कॉपर के लिए चाहिए हाँ सैलिसिलाल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिलामीन तो ये हो गया सैलिसिलाडाइजाइन ये देखिए ये एक है ये सब चिलेट करेंगे और ये एक है ये भी कॉपर के लिए चाहिए फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन वो भी चाहिए वो भी कॉपर के लिए चाहिए ये कॉपर के लिए ये देखो ये सिल्वर और कॉपर दोनों के लिए है 1,2 फिनिलिन डाइयामीन वो चाहिए कॉपर और जिंक के लिए बस ये ही रिमेम्बरिंग करना है हमको इसके बाद ये देखो पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सा रिएजेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स हैज बीन यूज्ड फॉर द होमोजेनियस प्रेसिपिटेशन ऑफ सम कैटायंस ये लिखना पड़ेगा इसके ऊपर नीचे और रिएक्शन लिखना पड़ेगा और याद है वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे वॉश हाँ मैंने बोला प्रेसिपिटेट को वॉश करना पड़ेगा इसके बाद वेइंग होगा ना आई थिंक इसका वाई देखिए वेइंग होगा इसके बाद ही वेइंग चलेगा तो अपने से ग्रेविटी मतलब तो वही है ना यस सर देखते हैं क्या लिखा हुआ है समरी आगे तो है ना एस्टिमेशन बेस्ड ऑन इसके बाद आ गया
समझ तो नहीं, ये चल रहा है, तो है अभी कुछ है अभी। ये है when precipitation is carried out from the solution, invariably only one of the constituents is precipitated, keeping many others in solution. The objects of washing the precipitate is to remove the impurities contaminating the precipitate as completely as possible. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, in nutshell, the wash solution should have the following characteristics. It should not have any dissolution action upon the precipitate, but remove from the foreign impurity easily. It should not peptize the precipitate. It should not form any volatile or insoluble. तो जो तुम वाश कर रहे हो ना, जो भी देखो यहाँ पर एक वाश के मैं दिखा रहा हूँ आपको। वाश करने के लिए देखो इथानॉल ऐड हो रहा है, एक सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड हो रहा है वॉशिंग के लिए। यस सर। You can take lead sulfate is your precipitate, then you can wash it by using sulfuric acid or ethanol. Then you can see here ferric hydroxide. If you want to precipitate, then 1% nitric acid is used along with ammonium nitrate. Copper sulfide. If you want to precipitate, you have to use acidified hydrogen sulfide water solution. तो इसका मतलब है जो तुम प्रेसिपिटेट के लिए भी वाश के लिए यूज कर रहे हो ना, वो भी तुम्हें Yes, देखकर यूज करना है, नहीं तो फिर वो एक रिएक्शन करके और कुछ बन जाएगा। Change the precipitation. हाँ, If we use anything else. तो मतलब खत्म, आपका काम जो होगा वो नहीं हो पाएगा। आपको प्योर चाहिए ना, प्योर कंपाउंड कैसे मिलेगा? आप तो यू हैव टू बी केयर, वही लिखा हुआ है। एडिशन ऑफ एन एसिड टू द वाश सॉल्यूशन विल प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरिक, और ये लेकिन इसमें कुछ है जो कि लिखा हुआ है कि ये सब नहीं करना है। जैसे कि जो भी यूज करोगे इसको ध्यान दें, इट शुड बी इजीली वोलेटाइल। जो भी तुम ऐड कर रहे हो ना वो इजीली उड़ जाएगा, नहीं तो फिर वो भी अगेन प्रॉब्लम करेगा। इट शुड नॉट कंटेन एनी अदर, हाँ जो तुम ऐड कर रहे हो ना इसके साथ कुछ मिलावट है तो फिर काम खत्म। इट शुड नॉट कंटेन एनी सब्सटेंस व्हिच इज लाइकली टू इंटरफेयर द सब्सिक्वेंट डिटरमिनेशन इन द फिल्ट्रेट, वो फॉलो नहीं करे, वो चाहिए सब कुछ। During washing of precipitate, the following general protocols should be, ये तुम्हें जानना है कि क्या क्या नहीं करना है। Since no precipitate is absolutely insoluble, minimum volume of the washing liquid required to remove the objects in the water, तुम्हें बहुत कम washing liquid लेना है। Then it is better to wash the precipitate with the number of small portions rather than one or two large portion। ओ बोला है कि फॉर एग्जाम्पल बल्क प्रेसिपिटेट है ना, तो थोड़ा थोड़ा लेके करना है, ना कि पूरा लेके करना है, वो बोल रहा है। और जो ड्रेन होगा ना, जो लिक्विड वाश के बाद ड्रेन करोगे, इसको भी ध्यान रखना है कि ड्रेन ठीक से हो रहा है कि नहीं, नहीं तो बाद में कुछ रह जाएगा और अगेन इस पे वो फिल्टर रिएक्शन करेगा, वो रिजल्ट वेरी करेगा फिर। हाँ, तो इसको दिखाओ, इसके साथ क्या क्या मिलाओगे वो लिखा हुआ है सब कुछ। ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट, देयर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट्स का क्या प्रॉब्लम है? बस कुछ नहीं सर, वो क्लासिफिकेट है, फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चिलेट बना सकता है, इसका कुछ एक है, जैसे कि एक 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 क्विनोलिनन, ऑक्सीन, और दीज आर द थिंग्स जिसके साथ कि तुम चिलेट बना सकते हो। सॉल्ट लाइक कंपाउंड बना सकते हो, इसका नेम दिया हुआ है इधर। ऑर्गेनिक रिएजेंट कैन आल्सो फॉर्म सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स विद सर्टेन कैटायंस लाइक K+। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, 4 बेंजीन रिंग है और बोरॉन एंड सोडियम है।
ये सब बस ऐसा ही है, इसमें कुछ इतना। रिएजेंट्स विद सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स और रिएजेंट बनते हैं। डायोक्सिम, देन ये के 1,2 डायोन डायोक्सिम, नाइट्रोसो कंपाउंड्स, ये सब है। N11 नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो कंपाउंड है ये। इसके बाद अमीनो एसिड ये है, दिस इज कॉल्ड एंथ्रानिलिक एसिड। जब ये लिखा हुआ है कॉपर, These are used for organic. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक रिएजेंट्स है। तुम जब फॉर एग्जांपल तुम्हें कॉपर को क्लीन करना है, ठीक है, तो कॉपर के साथ वो कंबाइन करेगा, जिंक करेगा, कैडमियम करेगा, कोबाल्ट करेगा, सिल्वर करेगा, और ये Okay. क्या बनाएगा? एक प्रेसिपिटेट बनाएगा, है कि नहीं? हाँ, यस सर, प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट के बाद वो जो मैंने बोला कि को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, वो इसके बाद चलेगा, ठीक है। वो रिएजेंट है, वो रिएजेंट है, मतलब वो ऑर्गेनिक रिएजेंट है। लेकिन हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन चीज है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, जो कि ग्रुप डी में है, 3D सीरीज में है, 3D में, 4D, इसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, इसके लिए वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। कॉपर, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, सिल्वर, वो सब के लिए। सल्फर कंपाउंड भी तुम ऐड कर सकते हो, ये सब है, ये कंपाउंड ऐड कर सकते हो। Basically, we use it for extraction, mineral extraction. क्या? Basically, this method used in mineral extraction. Yes, mineral extraction। मैंने एक्सट्रैक्शन के टाइम में यू टू प्यूरिफाई ना, प्यूरिफाई कैसे करोगे फिर? ये प्रोसेस है और क्या, बस इंडस्ट्रियल वर्क है और क्या। इसके बाद हुआ है, यू कैन सी हियर a number of organic reagents yield precipitate with metal ion which are coarse and bulky and therefore easy to handle for what gravimetric work। समझ आएगा कि नहीं? तो हल्का है तो नहीं आएगा, तो वेरी मैंने हेवी होता है ना, तो सेटल डाउन करता है। सेटल डाउन करने के बाद इसको वेट कर सकते हो ना, ड्राई करके। यस सर, ड्राई करके वेट कर सकते हैं। वही ग्रेविटी का मतलब तो वही है ना, वेट करना है। और कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो देख लेना आपने, बस इतना सही है। ओके, ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कल हम जो भी डाउट्स वगैरह है वो डाउट आज खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके सर। बाकी ये है, लास्ट टॉपिक है 14 देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अच्छा आ गया इंस्ट्रूमेंट्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स है, लास्ट टॉपिक है। देखो, आर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। क्लियर ना, क्या क्या है इसमें? यस सर। मतलब आपने ग्राविमेट्रिक से इसको अलग कर लिया ना, अभी जानना है कि इसमें क्या क्या है। देखो ये लिखा हुआ है, कौन सा टेक्निक यूज करोगे। ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन के लिए तुम्हें चाहिए फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटॉमिक ऑब्जर्प्शन, फ्लेम फोटोमेट्री। इमिशन के लिए चाहिए फ्लेम इमिशन, फ्लोरोसेंस करने के लिए चाहिए टर्बिडोमेट्री, नेफालोमेट्री, डिफ्रैक्शन चाहिए एक्सरे, इलेक्ट्रो डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए पोटेंशियोमेट्री, जो हमने पढ़ा है ना वो सब है। इलेक्ट्रोग्राविमेट्री, कंडक्टिमेट्री, वोल्टामेट्री, वो चाहिए कौन कौन सा प्रिंसिपल वो अडॉप्ट करते हैं, इसके लिए चाहिए। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए, मास टू चार्ज, ये चेंज नहीं है, मास टू चार्ज है, ठीक है। तो गलत लिखा हुआ है ये, मालूम है कि नहीं? वो ये होता है m/e रेशियो, मालूम है कि नहीं? m/e। यस सर। वो चेंज नहीं है, मास टू चार्ज होगा, ठीक है। एनालिटिकल बैलेंस आ गया, आपको कैसे वेट करना है। वो IBA का, वो इंडियन इंटरनेशनल ब्यूरो का है। कलरीमीटर, ये सब आपका प्रैक्टिकल चीज है जो होता है।
कलरीमीटर, फोटोमेट्री और सब है। ये लिखा है कलरीमीटर इज बेस्ड ऑन द कंप्राइजिंग द कलर प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विद द सेम कलर प्रोड्यूस्ड बाय ए नोन अमाउंट ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो कलरीमेट्री कलर से डिस्टिंग्विश होगा। एक नेस्लर्स ट्यूब होता है, इसे डालते हैं और डाल के फिर एक कैविटी होता है, इसके अंदर में डालते हैं वो ट्यूब, उसे नेस्लर्स ट्यूब बोलते हैं। और एक रेफरेंस होता है, इसके साथ इसका मैचिंग होता है, मैचिंग करके एक फॉर्मूला होता है C1H1 = C2H2, वो हाइट होता है, कॉलम का हाइट होता है, इससे कंसंट्रेशन पता चलता है, हम जान पाते हैं और क्या क्या सब्सटेंस है इसमें। फोटोमेट्री एक है, वो लाइट पास होता है, वो फोटो इमिसिव सेल होता है, और ये ग्लास ट्यूब होता है जिसमें आपका कंपाउंड होगा, वो पास करेगा इससे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको मालूम होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये तो आई यूज डेली। एक मोनोक्रोमेटर होता है, जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है ना, वो जो पास करता है, और Yes, उसका एक वेवलेंथ भी होता है, और प्रिज्म होता है, तो ये करंट पास करता है। इसके बाद हम ऑप्टिमाइज करते हैं इसको और देखते हैं कि कैसे इसका बना, वो सब बात आप मालूम होगा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर आप मालूम होगा, इसका पीक आएगा, पीक बनेगा सब कुछ, यूवी विजिबल है, वो आपको वो भी पीक आएगा। यस सर। फ्लेम फोटोमेट्री, या भी फोटोमीटर तो आई यूज डेली इन माय कंपनी टू टेस्टिंग कलर्स। हाँ, जैसे कि सोडियम, आपको मालूम है कि फ्लेम टेस्ट हम पढ़ते थे +2 में, फ्लेम टेस्ट, इसमें सोडियम का होता है क्या, गोल्डन येलो, पोटेशियम होता है क्रिम्सन रेड, है कि नहीं? यस सर। वो एक लेते हैं ना, एक लेते थे क्या, एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक लेते हैं, इसमें एक टंगस्टन वगैरह को डिप करते हैं, फिर सॉल्ट को डिप करके दिखाते हैं बुनसेन बर्नर में। एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक रिड्यूसिंग फ्लेम होता है, दोनों में अलग अलग कलर आता है, ठीक है कि नहीं? यस सर। से ही फ्लेम फोटोमेट्री का डिजाइन हुआ है। मीन्स हाई टेम्परेचर में तुम फ्लेम का कलर देख के बोल सकते हो कि कौन सा कंपाउंड ये है कि नहीं? जी सर। ये है। इसके बाद देखो स्पेक्ट्रोग्राफी, और ये तो एक मतलब एक कॉमन सा हो गया, स्पेक्ट्रोग्राफी एक टेक्निक होता है। देखिए ये होता है, तुमने फ्लेम यूज, एटमाइजर के लिए फ्लेम यूज किया तो टेम्परेचर क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक स्पार्क के, देखिए सब में फ्लेम आता है, सब में एटम को आयोनाइज करते हैं, हाँ कि नहीं? क्या होता है नॉर्मली फ्लेम टेस्ट में, क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर में वो आयोनाइज होता है, आयोनाइज होने से क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्सेल स्टेट को जंप करता है, जंप करने के बाद वो फिर एनर्जी लेके जाता है, फिर एनर्जी छोड़ के फिर वापस आता है। तो देन E2 - E1 = hν, hν = hc/λ, लैम्बडा एंड न्यू में इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो लैम्बडा एक कलर होता है, जिस रेंज में वो दिखाई देगा वो कलर हमको मालूम पड़ेगा, हाँ कि नहीं? यस सर। कि VI VG YO है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, रेड का ज़्यादा है, तो इससे पता चलेगा कि कौन सा कलर का कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड है, आयोन एटम है। तो इसको जो हम आयोनाइज करते हैं, वो आयोनाइज करने का मेथड से फ्लेम में कर सकते हो, इलेक्ट्रिक आर्क दे सकते हो, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे सकते हो, एक प्लाज्मा टेक्नोलॉजी अब आ चुका है, वो भी कर सकते हो, हाँ कि नहीं? यस सर। अभी क्या कि आप दुनिया में आप देखेंगे जितने भी एडवांस कंट्री में हो रहा है ना, वो प्लाज्मा से हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि प्लाज्मा ना जितने भी हाई टेम्परेचर हो प्लाज्मा काम कर सकता है, ठीक है? और ये इसमें एक चीज जितेंद्र याद करना, एक चीज में मेन चीज बताता हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है, मुझे मालूम है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बड़ा इशू होता है कि बहुत सारे पीक आते हैं, ठीक है? तो कौन सा एक्चुअल पीक वो जानना मुश्किल होता है, ठीक है? तो जब तुम प्लाज्मा में करोगे ना तो एक ही पीक आएगा,
अच्छा, बोले मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लाज्मा में एक ही पीक आएगा और ये एक शार्प पीक भी आएगा। क्लियर? तो पूरा पूरा जान पाओगे कि वही कंपाउंड है। इसलिए बाकी जो है वो सब माने मतलब जो गरीब कंट्री होते हैं वो करते हैं, लेकिन जो रिच कंट्री होते हैं ना, वो आप टेस्टिंग प्लाज्मा से ही करते हैं। देखो एक एक इधर लिखा हुआ है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, वो माइक्रोवेव से पास करता है। वो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट। अभी प्लाज्मा सब कुछ हो गया है। so it give accurate result, ये देखो, so everyone use it. 6,000 से 10,000 केल्विन तो जा सकते हो। सौंदर्य बोलो क्या हो रहा है, तो वो एटम का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, पूरा आ जाएगा इसके अंदर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और सिंगल पीक मिलेगा। पीक इज इम्पोर्टेंट। मालूम है, जैसे कि हम कोई हार्ट का ब्लॉक होता है, हम ईसीजी करते हैं, इसके बाद भी एक टेक्नोलॉजी है। मतलब जितना हाई टेक्नोलॉजी है ना, वो पीक को सेग्रीगेट करता है, वो बोलता है कि ये पीक आ गया, मतलब ये यही जगह पर हार्ट ब्लॉक है। हाँ कि नहीं? Yes तो sir. वो तो अभी मेडिकल साइंस में भी यूज हो रहा है। एटॉमिक, अब जैसे मैंने बोल दिया कि वो सब एटम, मतलब एटॉमिक, अब आई थिंक ये मालूम तुम्हें होगा, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स आर देयर आल्सो। ये नॉस्ट इक्वेशन से तो इलेक्ट्रो मतलब नॉस्ट इक्वेशन, ई सेल, ये सब है। हाँ देखो, ये तो सब सब जगह मालूम है। अब तो कोई भी अब ऐसा घर भी मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हाँ, जो कंप्यूटर से नहीं चलता है कि नहीं? yes sir, all instrument use computers. एवरीथिंग एवरीथिंग। मैंने तो देखा है कि हमारे इधर एक उड़ीसा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, सीपेट एक है, वहाँ पर सब बहुत अच्छा मशीन है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, कुछ करना ही नहीं है, ओनली सैंपल डालो। वो भी सैंपल अभी रोबोटिक आ गया है, मतलब सैंपल तुम्हें हाथ में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हाथ में भी कुछ हो सकता है कि नहीं? Impurity हो सकती है. तो सीधा वो जो ड्राइंग चैम्बर है और ओवन है जहाँ पर सैंपल है ना, वहाँ से वो ले जाएगा, और ये रोबोट लेके पूरा लेके वो डालेगा जहाँ डालना है, बस इसके बाद पूरा डाटा आपको दे देगा। बस आपको ओनली एनालिसिस करना है, डाटा में क्या है। अब तो एआई लग चुका है, एनालिसिस एआई ही कर देगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। We use वो तो FTIR. वो पूरा माइक्रो प्रोसेसर है, वो इसमें लेके पूरा मैथमेटिकल कंप्यूटर बना, पूरा ग्राफ करके आपको दे देगा कि ये प्रॉब्लम है, बस देखो क्या करना है। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है अभी, बस इतना सही है। एजिलेंट के और ज्यादा एडवांस आते हैं, हाँ, क्या तो बोले? कॉस्टली बहुत होते हैं। एजिलेंट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाँ, ये बहुत ज्यादा बहुत एडवांस आते कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है। अब तो हैं कोई अभी। भी इंस्ट्रूमेंट, अभी कोई भी तुम्हें टेस्टिंग का इंस्ट्रूमेंट किन लो ना, सिंपल सा किन लो, यूवी रेडिएशन, यूवी विजिबल का, वो तो 2.5 से कम नहीं होता, 1% तो कम नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी जैसे इन माय कंपनी वी Yes. वांट टू बाय FTIR. 50-60 लाख होगा तो कुछ भी नहीं होगा, आपका लैब कुछ भी नहीं करेगा। एजिलेंट ने उसका वो भेजा था, FTIR का वो भेजा था, कॉस्ट 75,000 $. हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, तो कितना हो गया? बोलो। और तो उसमें वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा, उसकी लाइब्रेरी तो $22,000 की तो उसकी लाइब्रेरी दे रहा था वो। अरे मैंने एक एफटीआर के लिए सेंड किया, आईआईटी मुंबई को मेरा सैंपल सेंड किया था, वो मुझे 20,000 रुपया मांगा एक सैंपल के लिए। मैंने दोस्त को बोला, फिर कुछ कम करके स्टूडेंट कंसेशन करके कराया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मांगे एक सैंपल टेस्ट के लिए। उसे रिजल्ट एक्यूरेट आते हैं। अब पूरा और एक्यूरेट, पूरा एक्यूरेट, पूरा एक्यूरेट। मतलब एक मेरा एक एफटीआर और एक यूवी था, दोनों का टेस्ट से मेरा 2 पेपर निकल गया रिसर्च का, इतना एक्यूरेट था। my company want to enter in IMC also. हाँ हाँ। अब आपका कंपनी का क्या नाम क्या है? Chemi products. नहीं products। क्या ये राजस्थान में है क्या? ये राजस्थान में भिवाड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी है ना राजस्थान का?
वो रिवाड़ी में? जयपुर में है सर, जयपुर में। जयपुर में है, अलवर में है। अलग में तो दो है, आई थिंक एक दो है, एक तो नॉर्मल है और एक ईएसआई का है ना। हाँ मैंने आई थिंक 1 महीना नहीं हुआ, मैंने अलवर गया था, तो एक फोर्ट है ना, अलवर में फोर्ट है सर वो। हाँ मैं देखने गया था, मैं एक होटल था इधर गया था, उधर अलवर गया, इसके बाद अलवर का जो सरिस्का, पूरा अलवर में रोड, सरिस्का भी है सर, हाँ सरिस्का भी अलवर में ही हाँ, है। वो भी मैंने गया, वो मैंने गया, और अलवर का मैं जो दो मेडिकल था इंस्टीट्यूट, वो भी गया मैंने गया, और आगे आगे भी गया, बहुत अच्छा चीज था देखने के लिए। अलवर डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ अलवर डिस्ट्रिक्ट है, पर अभी डिवाइड कर दिया है। अच्छा, ये रिसेंट गया था अभी, कितने एक महीना नहीं हुआ है हुआ था। और दिल्ली से लगभग 170-80 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ यस सर, गाड़ी में। फ्रॉम माय लोकेशन अलवर एंड दिल्ली सेम डिस्टेंस, अच्छा अच्छा, सही है। दो बोथ आर 80 किलोमीटर फ्रॉम माय लोकेशन। अच्छा 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 अच्छा, राइट। क्या अब तो दिल्ली में हो क्या? नहीं, मैं जॉब भिवाड़ी में करता हूँ ना, और रिवर में करता हूँ। तो और भिवाड़ी दिल्ली से तो दिल्ली, इससे और दिल्ली डिस्टेंस अलवर है। दोनों बहुत सेम डिस्टेंस है भिवाड़ी से। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। इसलिए अभी ओके। भिवाड़ी को जिला बनाया जा रहा है, हाँ 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 हाँ। क्योंकि सेंटर ज्यादा पास पड़ने का जिले से, अच्छा अच्छा। क्योंकि भिवाड़ी एनसीआर पड़ जाता है ना, हरियाणा टच में हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये तो पूरा, मतलब हम तो पूरा, मतलब मालूम नहीं पड़ा कि अलवर तक हम चले गए, मतलब मालूम है कि दिल्ली और अलवर एक ही टाउन जैसे लग रहा है। और वो 3 स्टेट हो गए उसमें, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, 3 स्टेट उसमें पता नहीं चल पा रहा है। यस, इसकी कौन सा कौन, मतलब ये इतना डेवलप हो चुका है कि मालूम नहीं पड़ा कि कौन सा कहाँ पर है। मतलब रियल राजस्थान यू सी आफ्टर जयपुर, हाँ हाँ हाँ। जयपुर तक तो मिक्स लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कि वो राजस्थान में होया नहीं। जयपुर के बाद असली उसके राजस्थान बाद दिखाई चलेगा, देता है। हाँ हाँ हाँ, राइट। ओके जितेंद्र, थैंक यू वेरी मच। तो आज एंड करें क्लास, ओके सर। कल कुछ डिस्कशन कर लेंगे पूरे टॉपिक में, बस कुछ बात कर लेंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।